ادھر کیوں آیا؟ داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، پگڑی لگا کے کیوں آیا؟ اب انصاری سے اگر بات کرنی میں نے، شرم کرے، داڑھی پر آپ توہین کر رہے ہیں، داڑھی کی توہین کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ؟ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی نا، اور کیوں ادھر آئے ہو نا؟ اور اگر انصاری سے بات کرنی تو آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تیل لگا کے داڑھی پہ ادھر کیوں آئے؟ تو جی آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں اللہ یاری صاحب کا اور ایک مولوی اہل حدیث کا مناظرہ ہونا چاہتا تھا، لیکن مناظرہ نہیں ہو پایا۔ اہل حدیث کا مولوی جو ہے وہ فون کاٹ کے بھاگ چکا۔ بات یہ تھی کہ اس نے کہا، اہل حدیث مولوی نے یہ کہا کہ اللہ یاری جو ہے وہ امامت ثابت کرے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ یاری صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ جو سوال رکھا ہے، ہم بالکل آپ کے اس سوال پر مناظرہ رکھیں گے، ہم امامت ثابت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے فرقے کا نام جو ہے اہل حدیث اور توحید رکھا ہے، تو توحید پر پہلے بات کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے پہلے سے توحید کے اوپر اس مولوی کو مناظرے کی دعوت دی ہوئی تھی، چیلنج دیا ہوا تھا، تو یہ مولوی صاحب فرار کر رہا تھا۔ تو یہ جب آیا تو اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جو پہلے ہم نے آپ سے چیلنج کیا توحید پر بات ہوگی، مناظر ہوگا، پھر ہم امامت پر بات کریں گے، کیونکہ جب توحید ہی نہیں ہے تو پھر امامت تو بعد کی بات ہے نا، رسالت تو بعد کی بات ہے، قرآن تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی توحید پر بات ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ یاری صاحب کا کہنا تھا۔ تو ان دونوں میں کیا بات ہوئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں، بسم اللہ۔ امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے، لیکن ہمارا ادعا یہ ہے، اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے۔ اللہ ہے تو نبی، نبوت ہے نا، اللہ ہے تو نبوت ہے، اللہ ہے تو قرآن ہے، اللہ ہے تو دین ہے، اللہ ہے تو نماز ہے، اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے، اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے، اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، بریلویہ کے نزدیک، دیوبندیہ کے نزدیک، آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں، آپ مجسمہ ہیں، اور آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ نہیں چل رہا، دوسری بات کر رہے ہیں، دوسری بات خاموش ہو جاؤ، میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو۔ اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو وجہ بتائیں۔ وہی جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا، وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو۔ اگر آپ کی توحید صحیح ہے، اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے، اور شیعہ مشرک ہے نا، دوسرے مشرک ہیں، بریلوی مشرک ہیں، احناف مشرک ہے، آپ کی توحید صحیح، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ اہم، کب سے اہم بنی؟ توحید زیادہ اہم۔ جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے، ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا، ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا، اتنی چالاکی لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظرہ شرائط میں مذکور ہے، موضوع اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کے شرائط مان لیے ہیں، گرچہ وہ جاہلانہ ہے، لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے۔ نمبر 1 توحید ہے، سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے، کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو۔ اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا اس پہ گفتگو ہوگی۔ مجھے چلیں ایک منٹ، آپ نے جو شرائط بتایا نا، اس میں سے ایک فقرے پر اگر آپ چاہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے چلے گی آپ کی بات سنیں نا، مجھے بھی آپ نے پورا لسٹ پڑھا ہے نا، تو جواب سن لو نا، خاموش ہو جاؤ۔ آپ کی بات سنتے اتنا ڈر گیا یہ آدمی، ایسے نہیں بات چلے گی، آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے رہے، میں آپ کی بات سنتا رہوں گا۔ ابھی آخری فقرہ ادب سے دیکھو، ادب سے گفتگو سن لو۔ مجھ سے جواب لینا، تو میری بات ختم ہو، آپ جواب دے دینا نا بھائی، میری بات ختم ہو، میری بات ختم ہو، پھر آپ میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کر لینا بھائی۔ جب آپ نے شرائط مانی، آپ سن لو نا، آپ سن لو پلیز۔ آپ ان شرائط میں عنوان طے ہے، شرائط اور ہوتے ہیں، موضوع اور ہوتا ہے، پلیز سن لے بھائی۔ عنوان طے ہے۔ شیخ صاحب میری بات ختم ہونے دو۔ کھائے گا، موضوع سے باہر جانے والے کو روکے گا۔ جب آپ نے شرائط مان لی، اس کا مطلب ہے آپ نے عنوان مناظرہ مانا ہے۔ اگر آپ شرائط مانتے ہیں
उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं, उन्वाने मुनाजरा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहाँ कहें मैं शराइत भी नहीं मानता। अगर आप शराइत मान रहे हैं तो उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शर्त ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शर्त ध्यान से सुनो, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले, तो उन्वान तौहीद होगा ना, इन्वान तौहीद होगा। से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाजिर बार बार मुनाजरा मौजूए मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझें। और दूसरी बात ये है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक एक बात होगी। अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप अब पहले अंसारी साहब से बात करें, अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं हैं तो जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिए। मुनाजिर आप हैं, मुनाजिर से ही गुफ्तगू के लोग अभी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं जानता। शेख साहब, लोगों हजरात सुने, मैंने इनसे क्या कहा? मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजूद मुनाजरा पर। मौजूद मुनाजरा क्या होगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, प्लीज सुन लेना। आप ये कह दें कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह दें इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह दें कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलैहि साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। जी, ये शख्स अहले हदीस काफ़ी बेवकूफ़ शख्स है और कह रहा है कि इमामत साबित करो। आपको बताते चलें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर, उनकी पुश्त के ऊपर कोई सवार नहीं हुआ, कोई भी अंबिया उनके आप सरकार की मोहर नबूवत पर नहीं सवार हुआ। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इमाम है वो सवार है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर के कंधों पर सवार हुए। अंबिया में से कोई भी उन्होंने हजूर के कंधों पर सवारी नहीं की। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर पाक सरकार के कंधों पर सवार हुए बचपन में। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत याह्या, हज़रत नूह, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा वो सवार नहीं हुए। तो जो नबी के कंधों पर सवार होगा वो तो फिर अफजल होगा ना। और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कहते हैं कि हुसैन मुझसे है। वो ख़ुद कहते हैं कि कुरान और अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ। तो हजूर ये कह देते कि मैं अंबिया छोड़ कर जा रहा हूँ। तो ये मौलवी साहब को जो है ना, पता नहीं इनकी समझ कहाँ है। और अब मैं आपको बात बताऊँ कि जन्नत के जो सरदार हैं ना, वो इमाम हजूर पाक सरकार ने बनाए हैं, इमाम हसन और हुसैन। ये इमामत में है जन्नत के सरदार। ठीक है, आप सरकार ने जो अंबिया, आप सरकार ख़ातमुन नबीयीन है, उनके पीछे जो अंबिया गुज़रे, नबी गुज़रे, वो जन्नत के सरदार नहीं आपने बताया। आपने कहा हसन और हुसैन इमामत में जन्नत के सरदार बताए। तो इसलिए इमामत अफजल है जो दूसरे अंबिया हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया और इमामत के सरदार हैं। ठीक है, और अंबिया से अफजल जो है हजूर पाक सरकार को छोड़कर अहले बैत अफजल है, 12 इमाम अफजल हैं। ठीक है, और हजूर पाक सरकार इमामत और अंबिया से अफजल है। क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौलवी इस बात को गलत ना समझे। तो आगे ये वीडियो में बात कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। जी शेख साहब, अभी मैंने आपकी बात सुनी है, मजीद कुछ कहना है या मैं शुरू करूं? अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए फिर इधर? क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के क्यों आए? अब अंसारी से अगर बात करनी मैंने, शर्म करे, दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अबू जाहिल की भी दाढ़ी थी ना, और क्यों इधर आए हो ना? और अगर अंसारी से बात करनी तो आप इधर क्यों आए? तेल लगा के दाढ़ी पे इधर क्यों आए? मुझे दावत दी गई है। अकल नहीं थी आपकी? कब बात अंसारी से होनी, आप क्यों आए?
जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब इजाजत है मैं कुछ गुफ्तगू करूं? तौहीन क्यों की है तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत। वहाबियों की दाढ़ी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप है ही नहीं, नबी के दीन पे आप है ही नहीं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में मुशरिक हैं, काफिर हैं। झूठ बोलते हैं। दाढ़ी दीन के साथ है भाई, पहले दीन के अकायद तो सही रखो। ऐसे तो दाढ़ी जो वो सिख है उनकी दाढ़ी भी अहले हदीसों की तरह बड़ी बड़ी है, वो भी दाढ़ी नहीं काटते। तो ये मौलवी को दाढ़ी के ऊपर बड़ा जो है ना गुस्सा आ रहा है। तो भाई पहले अकायद तो सीखो, पहले इस्लाम तो सीखो, पहले इस्लाम की जो बातें हैं उनको तो समझो। दाढ़ी पर जोर दिया हुआ है आपने। दाढ़ी तो मुसलमानों को छोड़कर और भी लोगों की दाढ़ी है, हिंदुओं की, सिखों की। और ये क्या बात कर रहे हैं मौलवी साहब, आगे देखते हैं। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके। आपसे बात करेंगे। लोगों सुन लो, इनसे मैंने क्या पूछा? तेरे सारे अकीदों पर बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिरकी अकीदों पे इजाजत बात दें करेंगे, शेख साहब, शेख साहब बात करेंगे, तेरे घर तक शेख साहब अब मुझे 2 लम्हे बात करने दें, आप तसल्ली से। बात करो। ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लोग सुन लें। मैंने से क्या कहा? तौहीद ज्यादा अहम है या इमामत? अंसारी साहब से बात करो। मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके बड़ों से गुफ्तगू किए, डॉक्टर जुबैर साहब आपसे 10 गुना बड़े हैं। अब भाई चुप करो ना, मुझे भी बात करने दो ना भाई। हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब, आप कुछ हमें बात करने दो ना। अंसारी साहब से बात करो। मन करो। ये भाग रहा है, ये आदमी भाग रहा है। भाग नहीं रहा, हम अपनी शर्तों पे कायम है। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, ये काट के भाग गया भाई। लोगों देख लो, मैंने इनसे कहा कि अगर आप तो, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं इमामत के मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं उससे अहम ज्यादा क्या है? तौहीद है ना। मेरा इद्दा यह है कि ये लोग मुशरिक हैं मुजस्सिमे तमाम फिरकों के नजदीक। मैं साबित करूंगा अहले इस्लाम, इनके अकायद इतने घटिया हैं तौहीद में, इतने घटिया हैं कि इनके रब में, अंसारी साहब के अल्लाह में और इस शख्स के अल्लाह में और हिंदुओं के कृष्णा में कोई फर्क ही नहीं है, उसी पे ही ईमान रखते हैं। एक आसमानी मौहूम जानवर की ये इबादत कर रहे होते हैं, जो ना रब हो सकता है, नो वहदुल्ला शरीक हो सकता है, जो खुद मोहताज है अनवा अक़साम चीज़ों की, और जो उस जैसे बहुत सारे दुनिया में जानवर मजीद हो सकते हैं। ये उस जानवर के मानने वाले हैं, उस जानवर की ये पूजा करने वाले लोग हैं। ये हिंदुओं से बदतर बुत परस्त हैं, क्योंकि हिंदू कुरान की रूह से, सुन्नत की रूह से बुत परस्ती नहीं करते। ये शेख साहब कुरान और सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के रूप में उसी मुशरिकीन कुरैश के इलाह की इबादत कर रहे हैं, हिंदुओं के इलाह की इबादत कर रहे हैं, और दूसरों पे तौहीद छोड़ने का और मुशरिक होने का ये टप्पा लगा रहे हैं। ठीक है ना? तौहीद पे बात करो। किसको आपने बेवकूफ समझा? आप समझते हैं कि हमें पता नहीं कि मौजू मुनाजरा और होता है, शराइत और होते हैं? ये आपको नहीं मालूम? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि आपने मौजू शराइत अगर मान लिए तो मौजू भी मान लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैंने कह दिया कि शराइत मुनाजरा और है, मौजू मुनाजरा और है। मैं बिल्कुल इमामत पे, अगर मैंने इमामत पे आपसे मुनाजरा नहीं की इन 2 मौजूआत के बाद, मैं अभी वादा देता हूं, मैं चैनल का पासवर्ड आपको दे देता हूं। जितने मेरे चैनल है, उर्दू जबान में, अरबी जबान में, इंग्लिश जबान में, फारसी में, मैं वो सब चैनल आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, टिकटॉक, पासवर्ड आपको आपके नाम करा देता हूं। मजीद क्या चाहिए आपको? अगर मैंने इमामत पे आपसे मुनाजरा नहीं की, बशर्त यह कि पहले इन 2 मौजूआत पे मुझसे मुनाजरा करो। बशर्त यह कि पहले इन 2 मौजूआत पे मुझसे मुनाजरा करो। इतना डरपोक आदमी, फरारी आदमी कि काट के भाग गया, चला गया भाई। ठीक है ना? तो शेख साहब अब सुन लो, मैंने कहा कि आपके शराइत अहमकाना है कि आपने कहा कि कंट्रोल मुनाजरा के 2 आदमी के पास होना चाहिए ना। ये गलत बात है, 1 आदमी के पास होना चाहिए। एक सालिस रखता है ना। मैं तजवीज के तौर पर ना माने तो मुझे एतराज नहीं है। आप मौजू मान लें, आप 5 कंट्रोलर लेके आए, मुनाजरा का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें केयास आ जाएगा। तो ये वीडियोस आपने देखी, वीडियो का एंड हो चुका है। तो शेख हसन अली साहब मौलवी को यही समझाने की कोशिश करें कि सालिस मॉडरेटर एक ही होना चाहिए। वो उसका काम है कि टाइम का ख्याल करे बस, और उसने कोई मनाजा थोड़ी करना। मनाजा तो मौलवी साहब ने खुद करना था। मौलवी साहब को एक साथ में एक हेल्पर चाहिए, वो हेल्पर तो खाली टाइम नोट करेगा। तो ये एक इसका मतलब है कि ये मौलवी साहब का बहाना था, बात ना करने का, मुनाजरा ना करने का बहाना था, क्योंकि इनको अलग से वीडियोस बनानी है और आमने सामने डिबेट नहीं करनी, बात नहीं करनी।
تو یہ پھر ادھر ادھر کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے مولوی صاحب, آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا, بلکہ بڑی محبت سے اور اخلاق سے بات کرتے, کیونکہ دین محبت کا, اخلاق کا, انسانیت کا نام ہے. اور آپ دین کے ٹھیکیدار مت بنے, جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے اس کو ماننا ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے فرقوں کو بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو فرقہ, جو ہمارے فرقوں کو حدیث اور قرآن سپورٹ کرتا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے, جو ہمارے فرقے کے خلاف ہے, قرآن کی بات یا حدیث کے خلاف, اس کو وہ مانتے نہیں ہیں, کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, راوی صحیح نہیں ہے, کوٹ کرنے والا بندہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بہانے کرتے ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو اللہ جو ہے نا صلاحیت دے, اور یہ معاملات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں, اور ہمیں ہمارے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, اور اپنے حضرت مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کرنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلام یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد.